Good morning, friends. This is Author Prakash, and you are watching Academy of Science and Arts by Author Prakash, sir. Today, I am going to talk about the important section that is related to time and tense, and you will be able to have the important. Okay, guys. I will be trying to make you understand the concept of time and tense as well as today in this episode we will be able to learn present perfect tense. My dear friends, why do we study present perfect tense? Why do we study time and tense? Because we know that without time and tense, without tense, we can't be able to express our point of view in front of anybody. Suppose that if you are going to write an answer of science question, arts questions, SST questions you are going to handle, then first of all you must understand the concept of tense. Without understanding the concept of tense, you can't be able to create sentences, create your own answer. If you would like to answer, if you would like to create your own answer, then you will have to understand the concept of present perfect tense. Here in this episode, I have to make you understand the concept of present perfect tense and why is present perfect tense important for us. We will understand in this episode. So keep continue and watch this complete video, guys, and share this video among your friends, because this video will improve your English. Because just now I am here, I am trying to make you understand the concept of English, concept of present perfect tense. Here I have written present perfect tense. First of all, look at these sentences. It means that look at these sentences. There are three sentences I have written. That is, in sentence A, I have lost my exercise book, and in sentence B, he has just arrived here, and in sentence C, we have written a letter. I have to tell you that, guys, these are the example of present perfect tense. We all know that, because what do you understand by present perfect tense? What is present perfect tense? What is meant by present perfect tense? Here I have written the definition of present perfect tense. It is used to show impact of a completed action. It is used to show impact of a completed action. If the action has been finished just now, and the impact of that action is on the present action. Suppose that I have taken breakfast. I have taken breakfast. The action of taking breakfast has been done, and due to taking breakfast, I am teaching here. I am shooting a video. I am teaching you here. Why? Because I have taken breakfast. The action of taking breakfast has been done, finished. Due to that action, the impact of that completed action on the present tense. I am teaching. Why? Because I have taken breakfast. Due to taking breakfast, I am teaching here. It means that I have taken breakfast means मैंने नाश्ता कर लिया, और नाश्ता करने का जो अभी अभी समाप्त हुआ और उसका प्रभाव, जो मैंने नाश्ता किया उसका प्रभाव अभी वर्तमान में। अगर मैं नाश्ता नहीं किया हुआ होता तो मैं अभी आपको पढ़ा रहा नहीं होता। मतलब मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग नाउ, आई एम टीचिंग इंग्लिश नाउ, मैं अभी अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। इसका ये मतलब हुआ मेरे प्यारे दोस्तों कि मैंने नाश्ता कर लिया, नाश्ता करने का काम पूरा हो गया, और उसका प्रभाव अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ उस पर है। मैं अभी जो पढ़ा रहा हूँ किसके वजह से पढ़ा रहा हूँ? क्योंकि मैंने नाश्ता कर लिया। अगर मैं नाश्ता नहीं किया होता तो मैं आपको अभी पढ़ा रहा नहीं होता। मतलब मैंने जो काम किया उसका प्रभाव किस पर है? प्रेजेंट पर पड़ रहा है। मतलब जो अभी हम काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम जस्ट में कोई कार्य फिनिश किए हैं, तो उसको बताने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट है। हमने कहा कि आई हैव लॉस्ट माई एक्सरसाइज बुक, या हमने कहा कि आई हैव टेकन ब्रेकफास्ट, मेरे द्वारा ब्रेकफास्ट लेने का काम जारी है या पूरा हो चुका है? पूरा हो चुका है, और उसी पूरा होने की वजह से दूसरा एक्शन जो है अभी जारी है। दैट इज आई एम टीचिंग यू, दैट इज आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ time and tense, and in time and tense I am talking about present perfect tense. I have lost my exercise books, मतलब मैंने अपना एक्सरसाइज बुक खो दिया है, मेरे द्वारा एक्सरसाइज बुक
होने का काम क्या है, पूरा हो चुका है, उसका प्रभाव अभी वर्तमान में खो गया है, इसीलिए अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं। या ही हैज जस्ट अराइव्ड हियर, वो तुरंत अभी अभी यहाँ पर पहुंचा है, मतलब अभी अभी तुरंत अगर कोई काम आपने पूरा किया है तो उसे बताने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। वी हैव रिटन अ लेटर, हमने जो है एक पत्र लिखा है, हमारे द्वारा जो पत्र लिखने का काम क्या हो चुका है, पूरा हो चुका है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये रूल है, ये कंस्ट्रक्शन है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। एक देखो प्रेजेंट और परफेक्ट है, परफेक्ट में तो कोई कार्य पूरा हो चुका है और उसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है, प्रेजेंट पर, मतलब कोई कार्य पूरा होने की वजह से भी दूसरा कार्य जो प्रेजेंट में हो रहा है। जितने भी कार्य हम करते हैं कहीं ना कहीं कोई कार्य पूरा हो जाता है, उसी के प्रभाव की वजह से वर्तमान में कोई कार्य आप कर रहे होते हैं, मतलब परफेक्ट। इसीलिए इसको हम कॉम्बो टेंस कहते हैं, कॉम्बो टेंस कहते हैं। कॉम्बो मतलब दो का मिश्रण, प्रेजेंट और पास्ट। ये परफेक्ट का मतलब कंप्लीटेड एक्शन, ये कंप्लीटेड एक्शन का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, वर्तमान पर, मतलब जो कार्य हमने कर लिया उसी के प्रभाव की वजह से वर्तमान में कोई कार्य हो रहा है या जारी है, ये बताता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यहाँ हमने एक स्ट्रक्चर लिखा है, कंस्ट्रक्शन लिखा है कि हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जो सेंटेंसेस होंगे वो किस स्ट्रक्चर पर हम पुट करेंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस क्रिएट होंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट जो होता है वो कर्ता होता है, सेंटेंस में जो काम करने वाला होता है वो कर्ता होता है। तो सब्जेक्ट क्या होगा, या नाउन या प्रोनाउन हो सकता है सब्जेक्ट। हैज हैव जो है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम क्या लगाएंगे, हैज। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम यहाँ पर हैव लगाएंगे और V3 लगाएंगे और ऑब्जेक्ट लगाएंगे। जैसे यहाँ पर देखिए आई हैव लॉस्ट माई एक्सरसाइज बुक, तो आई के साथ क्या लगाया, हैव लेके। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं आई, वी, दे, यू के साथ हैव और V3 का प्रयोग किया जाता है, तो आई के साथ हमने क्या लगाया, हैव लगाया, और लॉस जो है वो V3 लगाया। यहाँ पर देखिए V3 का इस्तेमाल, और माई एक्सरसाइज बुक जो है वो ऑब्जेक्ट है। He has just arrived here, तो he क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के अनुसार जो है हैज लगा दिया, क्योंकि he सिंगुलर है इसलिए हैज लगा। और यहाँ पर V3 का प्रयोग, ये जो जस्ट देख रहे हैं ये एडवर्ब्स ऑफ टाइम है। यहाँ पर देखिए ये नोट में एक बात बताया गया जो बहुत महत्वपूर्ण है मेरे प्यारे दोस्तों, ऑलरेडी, येट, since, just, so far, till now, up to the present, recently, lately, by the time, ये सारे वर्ड्स अगर किसी भी सेंटेंस में दिखे तो सीधे आपको हैज, हैव और V3 का प्रयोग करना है। माय डियर फ्रेंड्स, यू मस्ट पे अटेंशन on my speaking. I am here, I am gathered here to make you understand the concept of present perfect tense. I have told you that the construction of present perfect tense is subject plus has oblique have plus V3 plus object, and we have some examples, and here there is a note I have written here and you have to follow these notes. If a sentence contains already, ate, since, just, so far, till now, up to, present, recently, lately, by the time, from one of them is present in a sentence, it means that you are going to use subject plus has, have plus V3 plus subject. It means that you will use subject plus has, have plus V3. You will be able to use has, have plus V3 plus object. Here I have written the rule of present perfect tense, subject plus has, have. One more thing I would like to tell, that subject plus has been, subject plus has, have been plus a noun or adjective or since or for can be used if an action begins in past and it is still continue in the present. Suppose that an action has begun in the past and that is still continue in the present, then I would like to say you are able to use this structure what I have written here, that is subject plus has oblique have been plus noun adjective plus since plus for. We all know that since for can be used in present perfect tense and present perfect continuous tense, such as if I say I have been ill since Monday. I have been ill since Monday. It means that the action begins in the past, but it is still continue in the present. It means that there is a IP I have written. IP means important point. I have mentioned, I have written. That is, this is the combo of present and past, because the action is completed in the past and the impact of that action is on the present tense, Therefore, I can tell you, if I have completed the action, due to completing that action, I am doing my job. I am just now working. I am working because I have done my job. I have taken breakfast. I have
done my external jobs, I am done my other jobs. Therefore, I am teaching, I am making a video, and you are watching this video carefully, very carefully, guys. I think that you have understood the concept of present perfect tense. Present perfect tense, I have to tell that it is used to denote impact of the action which has been completed, and the completed action impacts over the present time, the action which is going on due to the completing of the previous action. Past action has been completed. Due to that action, the action is continued just now. Here I have written, if an action begins in past and still continue in present, it means that I love to say that this is very important to understand here. Here, see this side, guys. If you are new on my YouTube channel, please subscribe, share, and like and comment. You forget to comment, you forget to subscribe, you forget to comment. You should give feedback. You must give a compliment. How is this video? You do not give compliment. I have trying to do work very hard. I have been working very hard to make you sure that you are here. You will get a lot of information from me, because I am here to make you clear that you will be able to speak English in front of me. You will break your hesitation. You try firstly start to speak. You will be able to speak, because a lot of information I have been giving you, because you will understand this. Here, see that there is an IP I have written. You have to pay attention on that. That is IP IVDU. देख लीजिए, यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों, अपने दिमाग में इस बात को ठूस डालिए। जहां पर भी आई देखिए, वी देखिए, दे देखिए, यू देखिए। मेरे प्यारे दोस्तों, आपके इस ब्रह्मांड में कहीं पर भी आई वी दे यू दिखे तो उसके साथ हैव लगाएंगे और V3 लगाएंगे। V3 का क्या मतलब होता है? क्रिया के जो है 6 रूप होते हैं। There are 6 forms of verbs according to author Prakash sir, which is written in Mother English Grammar. You can go and purchase and you can see the forms of verbs in Mother English Grammar, that there are 6 forms of verbs according to me, according to author Prakash sir. V1, V2, V3, V4, V5, V6. Play, played, played, playing, plays, to play. Here V3 is played. Have here I वी दे यू, ये जो इसके साथ हम क्या लगाएंगे? हैव लगाएंगे, और उसके बाद V3 हम यूज करेंगे। आई सिंगुलर है, हम जानते हैं। आई एक्सेप्शन है, आई के साथ हैव लगेगा। वी प्लूरल है, दे प्लूरल है, यू प्लूरल है, उसके साथ हैव और V3 लगाएंगे। यहाँ पर नेक्स्ट आईपी, उसको आप गौर से देखिए। ही, सी, राम, इट, मतलब ही, सी, ही जो है सिंगुलर है, सी भी कुछ सिंगुलर है, राम या किसी का नाम। ये बोर्ड के साथ भी हैज लगेगा। आप देख रहे हैं मोबाइल के साथ हैज लगेगा, प्रकाश सर के साथ हैज लगेगा। ये आप जो देख रहे हैं ये मार्कर के साथ हैज लगेगा, क्योंकि ये भी सिंगुलर है, उसके साथ हैज लगेगा, और V3 का प्रयोग वहां पर भी करेंगे। जैसे सी हैज टेकन टी, ही हैज टेकन टी, राम हैज टेकन टी, इट हैज गॉन, I have taken tea, we have taken tea, they have taken tea, you have taken tea। यहाँ पर ये तो अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल है दोस्तों। हम बार बार कहते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स्ट, सिंगुलर वर्ब। दिमाग में ठूस डालिए, पुट इट इनटू योर माइंड दैट सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स्ट सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल सब्जेक्ट टेक्स्ट प्लूरल वर्ब। एंड आप याद रखें कि यहाँ पर निगेटिव जब बनाते हैं तो सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस नॉट, ये जो हेल्पिंग वर्ब है हैज, हैव, उसमें नॉट लगा करके और V3 और ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। जैसे हमने कहा ही हैज टेकन टी, तो ही हैज नॉट टेकन टी, निगेटिव हो गया, ही हैज नॉट टेकन टी। आई हैव नॉट टेकन टी, यू हैव नॉट टेकन टी। अगर इंटेरोगेटिव बनाते हैं तो हम क्या करते हैं? हैज, हैव को बाहर निकाल देते हैं। हैज, हैव जो एक्सुलरी वर्ब को बाहर निकाल करके इंटेरोगेटिव बनाया जाता है, और हैज एक्सुलरी वर्ब में नॉट लगा करके निगेटिव बनाया जाता है। तो हैज, हैव आप देखेंगे बाहर कर दिया, यहाँ पर सब्जेक्ट है, उसके बाद V3 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे हैव आई टेकन टी, क्या मैंने चाय पी लिया है। हैव यू वॉच दिस वीडियो, हैव यू शेयर्ड दिस वीडियो, हैव यू कमेंटेड ऑन दिस वीडियो, हैव यू सीन दिस वीडियो। हैव यू सीन दिस वीडियो क्या है? हैव क्या है? यहाँ पर सब्जेक्ट में ये एक्सुलरी वर्ब हो गया, सब्जेक्ट यू हो गया, और सीन V3 हो गया, और वीडियो हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो दोस्तों इस बात को ध्यान रखें कि यह वीडियो जो है ये आपके लिए ही बनाया जा रहा है। जितने भी गरीब बच्चे हैं वो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और जो भी बच्चे इससे लाभान्वित हो रहे हैं तो कम से कम सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम इतना प्रयास कर रहे हैं आप लोगों के लिए, लेकिन आप सब्सक्राइब भी नहीं करते, नहीं लाइक करते हैं, नहीं कमेंट करते हैं। कमेंट तो कम से कम कर सकते हैं, आप फीडबैक दें,
क्योंकि जो टैलेंटेड होते हैं वो कमेंट करते हैं, डेफिनेटली वो कमेंट करते हैं, दूसरे को प्रशंसा करते हैं कि कैसा वीडियो है। नहीं, हमको देखते हैं ऐसे ऐसे वीडियो, अगर भोजपुरी गाने पर लोग कितने सारे लाखों करोड़ों लाइक सब्सक्राइब हो जाते हैं और लाखों करोड़ों लोग जो है सब्सक्राइब करके उसको शेयर कर देते हैं, लेकिन इस प्रकार का वीडियो का प्रयास है हमारे समाज को बेहतर बनाने के लिए। जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं उसके लिए एक प्रयास है, उस प्रयास को आप सपोर्ट करें। और कभी कभी लगता है कि ऐसे ऐसे वीडियो जो है बहुत ज्यादा व्यू हो जाता है, बहुत ज्यादा लाइक होता है, लेकिन इतना प्रयास मैं कर रहा हूं तभी कुछ लोग जो है सब्सक्राइब देखने के बाद भी सब्सक्राइब नहीं करते। क्या जाएगा, यू शुड सपोर्ट मी, आप हमें सपोर्ट करेंगे तभी मोटिवेटेड होंगे, इंस्पायर होंगे, तो और मेहनत करूंगा मैं आपको फ्री में वीडियो देने का। यही सब वीडियो पाने के लिए लोग कितना लाखों रुपए खर्चा करते हैं, किसी कोचिंग में जाकर के बैच लेते हैं, और इसको हम इस प्रकार से देने का प्रयास करते हैं। आप नहीं देखते हैं, शेयर कीजिए, कम से कम एक बार देख के और कमेंट कीजिए कि इसमें क्या कमी है, डेफिनेटली उसमें हम प्रयास करेंगे बदलाव करने का। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा। देखिए, यस्टरडे, लास्ट वीक, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, अगो आर नॉट यूज इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। याद रखिएगा, यस्टरडे अगर है, देखो लास्ट हो को पास्ट, जहां पर भी लास्ट देखेंगे, लास्ट वीक हो, लास्ट ईयर हो, लास्ट मंथ हो, अगो रहे, वहां पर V2 का इस्तेमाल किया जाता है, हैज, हैव और V3 का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। जैसे हम बोलेंगे यहां पर एक सेंटेंस अगर लिख दे, यहां पर एक सेंटेंस लिखें कि आई हैव सीन हिम यस्टरडे, तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। यस्टरडे जब भी होगा तो यहां पर हैव सीन नहीं होगा मेरे प्यारे दोस्तों, यहां पर V2 होगा, क्योंकि यस्टरडे पास्ट को, बीते हुए समय को बताता है। और ये जो प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल किया जाता है, कोई कार्य पूरा हो गया, उसका प्रभाव अगर वर्तमान में पड़ रहा है, उसी कार्य की वजह से वर्तमान में कोई कार्य जारी है, तो उसको बताने के लिए हम क्या करते हैं, पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया। आई सॉ हिम यस्टरडे सही है, आई सॉ हिम लास्ट वीक सही है, क्योंकि देखो लास्ट होगा, जहां पर भी आपको लास्ट नजर आया वहां पर क्या यूज कर देना है, आपको पास्ट V2 का इस्तेमाल किया जाना। लेकिन ये जो जितने भी वर्ड्स हमने लिखा है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इसका इस्तेमाल हम नहीं कर सकते। तो आपको, हमें लग रहा है कि ये समझ में आ रहा होगा। कुछ चीजें और हम जो है इसको एक्सप्लेन कर देते हैं दोस्तों, इसको मिटाना पड़ेगा हमें, कुछ चीजें एक्सप्लेन कर देते हैं। जैसे हम सिंस और फॉर का कहां पर प्रयोग करते हैं उसको देख लीजिए, समझने की जरूरत है। ये सिंस और फॉर का इस्तेमाल हम कहां करते हैं, इसको भी हम लोग देखेंगे दोस्तों। और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आप शेयर करें दोस्तों। I hope that you will share this video among your friends, and definitely I am very confident to make this video. I am very happy to deliver this video or deliver this class, and I have been delivering the classes, a lot of classes on YouTube, and you will be able to have the different concept from me. Just now I am going to tell you that since का प्रयोग कहाँ किया जाता है। देखिए, since का प्रयोग हम दोनों इसमें भी करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी करते हैं since और फॉर का प्रयोग, लेकिन कहां पर करते हैं, ये जो सिंस जो है, ध्यान दीजिएगा, सिंस जो है, सिंस का प्रयोग करते हैं, ये जो है पीरियड ऑफ टाइम को बताने, सॉरी पॉइंट ऑफ टाइम को बताने के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम को इंडिकेट करने के लिए। वी ऑलवेज ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट सिंस इज यूज्ड टू डिनोट पॉइंट ऑफ टाइम एंड फॉर इज यूज्ड टू डिनोट पीरियड ऑफ टाइम। इसको हम पीरियड ऑफ टाइम को डिनोट करने के लिए बताते हैं। अगर यहां पर रहे 2 डेज रहे, 3 डेज रहे, यहां पर आपको 4 आवर्स रहे या 6 इयर्स रहे, तो ये यहां पर क्या है, पीरियड है। 4 मिनट, 10 मिनट, 4 दिन, 5 दिन, 5 महीना, 10 महीना, 20 महीना, 10 साल, 15 साल, सेवरल इयर्स, ये सारे के सारे पीरियड है दोस्तों। और पीरियड इसमें क्या लगाएंगे, हम फॉर लगाएंगे। लेकिन यहां पर पॉइंट ऑफ टाइम की बात करें तो अगर हम बोले मॉन्डे, तो क्या हो जाएगा, सिंस मॉन्डे। अगर बोले 2002, तो ये क्या हो जाएगा, सिंस हो जाएगा, कि ये पॉइंट को इंडिकेट कर रहा है। आप जैसे एक देख सकते हैं, जैसे कि हम यहां से अगर टाइम लाइन एक जो है यहां पर से ड्रॉ करें, तो आप देख लीजिए यहां पर अगर 2002 है और यहां पर 2022 है, 2022 है, सितंबर है। अगर मैं बोलूं 2002 से पढ़ा रहा हूं तो ये क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम हो गया, ये पॉइंट ऑफ टाइम हो गया। लेकिन अगर 2002, 2003, 4, 5 ऐसे करके आप चले जाते हैं 2022, कहने का मतलब है कि मैं 10 वर्षों से पढ़ा रहा हूं। अगर मैं 10 इयर्स कह रहा हूं, 10 इयर्स कह रहा हूं, तो क्या हो जाएगा, यहां पर फॉर हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट है। अगर मैं कहूं 2003 से पढ़ा रहा हूं तो ये पॉइंट ऑफ टाइम हो गया, पॉइंट ऑफ टाइम तो सिंस लगेगा।
सिंस 2003 होगा। अब मैं बोलूं 2005 से पढ़ा, 2006, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 से पढ़ा रहा हूं। इस प्रकार से अगर मैं बातें कर रहा हूं तो वहां पर सिंस का इस्तेमाल होगा। हमें लगता है आप इस बात को समझ चुके होंगे। अब एक चीज समझने वाली बात है कि अगर हम बोले आई हैव बीन हैप्पी सिंस yesterday, देख लीजिए, यहां पर गौर से देखिए, यहां पर क्या है, सब्जेक्ट है और यहां पर हैज, हैव बीन है, और यहां पर क्या है, एडजेक्टिव है और सिंस लग गया, तो यहां पर एस्टरडे। एस्टरडे क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है दोस्तों, पॉइंट ऑफ टाइम है एस्टरडे, कल से। अगर मैं कहूं 24 घंटे से या 48 घंटे से या 44 घंटे से, है ना, या 72 घंटे से, तो यहां पर हो जाएगा वो पीरियड ऑफ टाइम, ये हो गया पॉइंट ऑफ टाइम हो गया दोस्तों। तो इसीलिए यहां पॉइंट ऑफ टाइम है, इसलिए यहां पर सिंस लगा दिया। यहां पर अगर 24 घंटे से रहता, 14 आवर्स रहता यहां पर, तो क्या लगा देते, फॉर लगा देते। अब कहिएगा सर ये बीन लगा दिए, इसके बाद V4 नहीं लगाया, तो बीन लगा दिए, तो बीन के बाद जो है एडजेक्टिव आ गया, ये हैप्पी जो है क्या है, एडजेक्टिव है। तो मैं जो है कल से खुश हूं, तो ये मैंने क्या कहा था कि इफ एन एक्शन बिगिंस इन पास्ट, खुश होने का एक्शन पास्ट में ही शुरू हुआ लेकिन अभी भी प्रेजेंट में कंटिन्यू हो, अभी भी खुश हूं, मतलब मैं कल से खुश हूं या मैं 24 घंटे से खुश हूं, इसका मतलब अभी भी वर्तमान में खुश हूं। इसलिए मैंने बताया कि इस प्रकार के भी स्ट्रक्चर का हम प्रयोग कर सकते हैं, जैसे सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव बीन प्लस एडजेक्टिव, यहां पर प्रोनाउन डाल सकते हैं या नाउन भी डाल सकते हैं, प्लस सिंस या फॉर, ऐसा आप बना सकते हैं। आई हैव बीन अ टीचर सिंस 2013, 12, ऐसा कह सकते हैं, या आई हैव बीन अ टीचर फॉर 14 ईयर्स, मतलब 14 सालों से मैं शिक्षक होता हूं। 14 ईयर्स क्या हो गया, पीरियड ऑफ टाइम। तो मेरे प्यारे दोस्तों अपने दिमाग में ठूस डालिए इस बात को कि अगर पीरियड ऑफ टाइम हो तो पीरियड ऑफ टाइम को बताने के लिए फॉर का प्रयोग और पॉइंट ऑफ टाइम को बताने के लिए सिंस का प्रयोग। कल से, टुमारो से, सॉरी 2019 से, 2015 से, या मंगलवार से, सोमवार से, ये अगर पॉइंट को, किसी पॉइंट को इंडिकेट कर रहे हैं। यहाँ पीरियड की बात हो तो किसी हम नंबर की बात कर रहे हैं, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 2 साल, 5 साल, बहुत कई साल, तो इसमें हम फॉर का प्रयोग करते हैं पीरियड ऑफ टाइम को बताने के लिए। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम। You should subscribe to my channel and share this video. I hope that you will do like that. Thank you very much friends. फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में।